Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study case-based questions. Before this, you can watch previous year, very short, long question answer. They all are the previous year board question answer which are very important for your 2023-24 exam. So let's start the lecture today. Here, the first question in front of you, that is, read the following case-based passage and answer the questions given after the passage. Question is, a room has two tube light. एक रूम में दो ट्यूबलाइट है, एक फैन है, एक टीवी है. ईच ट्यूबलाइट ड्रॉज 40 वॉट. कितना करता है? 40 वॉट कंजप्शन करता है एनर्जी का. फैन 80 वॉट, टीवी 60 वॉट. द ट्यूबलाइट आर केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स. कितनी देर के लिए ट्यूबलाइट को जलाया जाता है? फॉर 5 hours, right? Fan को 12 hours and TV that is for 8 hours every day. The rate for electric energy is given 3.10. 3 rupees 10 पैसा पर किलोवाट आवर. कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड. हमें बताना है कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई. सो हियर हाउ टू फाइंड इट वी नो. फॉर ट्यूब लाइट इफ वी फाइंड दैट P दैट इज इक्वल्स टू, देखो कितना है यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 40 वॉट. ठीक है, फॉर ट्यूबलाइट, right? Now what it is given, we convert it. 40 divided by 1000, it is here, it equals to kilowatt, right? Now energy, how to find out the energy consumed. कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज H और यू कैन से W. वी नो P इक्वल टू W बाई T. पावर किसके इक्वल होती है? वर्क डन बाय टाइम. वी नीड टू फाइंड आउट वर्क डन हियर. तो वर्क डन विल बी पावर इनटू टाइम, राइट? पावर दैट इज 40 डिवाइड बाय 1000. अब कितने टाइम के लिए उसको यूज किया गया? 5 आवर के लिए. सो हियर वी डिवाइडेड बाय 5. इट्स हियर 200, 0 cancel out, and here 1 by 5 which is equals to 0.2 kilowatt hour. ठीक है, energy consumption that is in tube light, it is equal to 0.2. Next question is here, what is the total energy consumed in a day? Total energy means we need to find out for tube light. Next we will find it for the next fan, then TV, right? Now total energy consumed, we will add them and then we find out for a day. So here first of all take tube light. For tube light we found it is equal to 0.2 kilowatt hour. Next for fan we find it is equals to total, it is equal to 80 watt. given है यहाँ पर 80 watt है. पावर कितनी है? 80. डिवाइड करेंगे 1000 से ताकि किलोवाट में कन्वर्ट हो. टाइम कितना कंजप्शन होता है? 12 आवर के लिए. ठीक है, फैन को कितनी देर के लिए ऑन किया गया? 12 आवर. तो मल्टीप्लाई बाय 12. सो हियर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट इट इक्वल्स टू 0.96 किलोवाट आवर, राइट? नेक्स्ट इट इज गिवन फॉर टीवी. फॉर टीवी विल वी फाइंड आउट इट इज 60 डिवाइड बाय 1000 into 8, and we solve, we get it equals to 0.48 kilowatt hour. Now we need to find out the total energy. So total energy that is given by here, it equals to C. What is the total energy consumed in a day? तो आपको बताना है total energy दिन में कितनी consume होती है. So here we have this 0.2 multiply 2. Why multiply 2? Because this is for 1 और हमारे पास कितनी ट्यूबलाइट है? We have 2 ट्यूबलाइट्स. So multiply by 2 plus 0.96 plus 0.48. Add these all, we get it equals to 1.84 kilowatt hour, right? Clear? Okay. Now energy consumed in a day. कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? ये क्वेश्चन में कहता है what is the total energy consumed. Sorry, third is find the cost of electricity used in this room in 30-day month. अगर 30 दिन के लिए उसको निकाला जाए तो what will be the amount? That is here, let's find it. For 1 kilowatt, for 1 kilowatt hour, it is here 3.10, right? For 1.84 we multiply this 3.10 into 1.84, right? So here it comes 55.2. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो एनर्जी कंजप्शन हुई वो 55.2, right? Now after this we can find here, ये हमारा टोटल कॉस्ट जो होगा वो कितना होगा? अमाउंट आपके पास है 3.1
राइट। अच्छा, ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 30 और कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर, एक मिनट, 1 किलो वॉट के लिए हम कहते हैं 1 किलो वॉट 1 डे के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं ना। सो फॉर 1 डे इट इज दिस, सो लेट्स फाइंड इट हियर। एनर्जी इन 1 डे इट इज दिस, right? It's 1.84, right? For 30 days it was 55.2, right? For one amount it is given 3.10, so multiply by 3.10 as I have calculated already, right, in a notebook, so that's why I'm telling this. So here directly I'm telling the answer is 171.12. टोटल जो अमाउंट निकल के आता है वो आता है 171 रुपीज, राइट। now what quantity determine the rate at which the energy is delivered by the current? what quantity determine, कौन सी क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है कि एनर्जी पर रेट के अकॉर्डिंग क्या है? सो इट इज डिटरमाइंड बाय, फर्स्ट इट इज पोटेंशियल V, potential difference, and second thing that is current flowing in the circuit, right? Okay, now come to next here. Next question is, read the following case-based passage. We need to first find out, in the series combination the resistance are joined end to end. For a series combination resistor RS, we know sum of all the resistor, जितने भी रेजिस्टेंस होता है उनका सबका सम होता है, आई हमेशा सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है. When two or more resistors are combined in such a way that their first end are connected to one to end, then in a parallel combination हमारे पास ये होता है, राइट। इसमें हम ये देखते हैं कि जो करंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज ऑलवेज सेम. नाउ हियर इफ वी कनेक्ट एन बल्ब, अगर आप एन बल्ब्स को कनेक्ट करते हैं in series, but is the total power consumed by combination at a rated current? So here we see that first we connect them in series. How? N, how many? N number of resistors. So RS we know formula is R1 plus R2 plus R3 up to Rn, right? Right. Now we know V square by PS. We need to find out the power here. Power find out करना है तो V square by PS is equal to V square V1 square by P1 plus V2 square by P2. Individually we can find out all the values, right? We here know V square by PS is equal to RS, ठीक है। वैसे तो पावर का फॉर्मूला होता है इट इक्वल्स टू V square by R, बट अभी हमें क्वेश्चन की क्या पता है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के थ्रू हमने फाइंड आउट किया इट इज V square by P, राइट, बाय P3 अप टू यहाँ पर आ जाएगा हमारा V square N divided by Pn, right? Now when bulbs are of equal power, अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर इनकी पावर क्या है, इक्वल है, तो अगर इक्वल पावर होगी तो V square by PS किसके इक्वल होना चाहिए? How many times? These total it is n times, तो it is n into V square by P, बिल्कुल ठीक है। सो आंसर इज दिस, राइट। यहाँ से V स्क्र से V स्क्र कैंसिल कर देते हैं, 1/PS किसके इक्वल आ जाएगा, N/P के इक्वल, और आपको फाइंड आउट करना है पावर दैट इज इन सीरीज, इट इज इक्वल टू, हेयर इट इक्वल्स टू P/N, राइट, ठीक है, दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when this resistors that is connected in पैरेलल, अगर ये किस में कनेक्ट हो जाए, पैरेलल में, ठीक है, तो पैरेलल वी नो द फॉर्मूला 1/RP का फॉर्मूला हमें याद है, क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/Rn, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको पता है अभी हमने किया पावर होता है V स्क्र बाय R के इक्वल. If you want to find out R, so R will be V square divided by P, right? Okay, put the value. And if you are taking reciprocal, this value will be also reciprocal. Here, P divided by V square, it is equals to P1 divided by V square plus P2 divided by V square. So these all we add and we get here, it is equals to, कैंसिल आउट दीज वी स्क्वेयर्स, जितनी भी वी स्क्वेयर्स हैं वो कॉमन लेके कैंसिल होंगे, और पावर पैरेलल में किसके इक्वल आएगी, इट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस कहाँ तक, Pn तक, राइट, ठीक है। सो हियर P पैरेलल इट इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स दिस P, ये सारे P इक्वल मान लेते हैं तो n टाइम्स ऑफ P,
right? Answer is this. Got it? Clear? Now, next question, if you will see here, the power consumed by n equal resistance in parallel is x time the power consumed in series. देखो, power consumed in parallel, पैरेलल में अगर आप इनको कनेक्ट करें, उसका जितना पैरेलल पावर आती है, इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स टाइम्स द पावर इन सीरीज. सो वी नो द फॉर्मूला हियर. पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं, द फॉर्मूला इज हियर, इट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये देखो हमने किया था सीरीज में, फॉर्मूला था हमारा वी स्क्वायर बाय एन इन टू आर, राइट. ठीक है, तो यहाँ से हम पी पावर वाला जो फॉर्मूला था उसको वो दोनों को ही पुट करना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर आर बाई एन इज इक्वल टू एक्स टाइम्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इन टू आर, राइट. वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, यहाँ से हमारे पास आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एन आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट x इक्वल टू एन स्क्वायर. तो आपके पास आ गया नंबर दैट विल बी x. ठीक है, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एन स्क्वायर के इक्वल आ गई. नाउ हियर नेक्स्ट इज, if resistors 4 ohm, 5 ohm and 6 ohm are connected in series with a 5 volt battery, calculate the total power consumed by the combination. So here P that is equals to, किसके इक्वल होता है, P divide V square divided by R, right. Now in this we have V square as it is. Now question is they are connected in series. According to series, if we will see, the formula is R1 plus R2 plus R3. तीनों को ऐड कर देते हैं. वी स्क्र डिवाइड बाय R1 की वैल्यू है हमारे पास 4, R2 की वैल्यू है 5 और R3 की वैल्यू क्या है 6. सो इट इज here potential is given 5 volt, so 5 square divided by, add these all, 9 6 15, this comes equals to 5 by 3. तो आपके पास जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ गई, 5 by 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, that is here we have a question. In household electric circuit, the mains supply is delivered to our home using the 3 core cable. You know, जब भी हमारे उसमें सप्लाई होती है तो मेन सप्लाई कैसी सप्लाई होती है, 3 उसमें डिवाइड होती है. ठीक है, द फर्स्ट these 3 वायर्स वी हैव, लाइव वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है और एक अर्थ वायर होती है. लाइव वायर इज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस, कितनी पर होती है, 220 वोल्ट पर. ठीक है, and potential wire between a live wire and neutral wire is 220 volt. उन दोनों के बीच में पोटेंशियल इतना ही होता है. लाइव वायर इज कनेक्टेड टू द मीटर थ्रू अ फ्यूज, किसके थ्रू जाती है, ये फ्यूज के थ्रू जाती है. द न्यूट्रल वायर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिक मीटर, और न्यूट्रल वायर को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किटिंग. शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझ लो इस चीज को, दैट द कंडीशन live wire when live wire comes in contact with न्यूट्रल वायर. अगर कभी भी ऐसा होगा कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होता है. ठीक है, ए हाई करंट विल फ्लो, राइट. ठीक है, और वायर ब्रेक हो जाती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हियर, हाउ स्विचेस आर कनेक्टेड इन ए सर्किट. स्विचेस को कैसे कनेक्ट करते हैं. सो स्विचेस आर कनेक्टेड इन, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड in this in live wire, with the live wire, right. Because when the switch is in off position, अगर ऐसा होगा कि वो ऑफ पोजीशन में होगा, so no point of the connected appliances will be at higher potential, right. Potential 220 volt, right.
So here, that's why they are connected like this. Now, what is the usual current rating of the fuse wire in the line if the electric iron, geyser and room meter are in use? So what's the answer here? A fuse of rating 15 ampere is usually used. कितना यूज किया जाता है? यूजुअल करंट कितना होना चाहिए? 15 एम्पियर का होना चाहिए. ठीक है. अगर आप क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, रूम हीटर. नाउ व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग ऑफ एनी एप्लियंस, कोई भी एप्लियंस है अगर उसकी अर्थिंग करवानी है, इट इज डन टू प्रोटेक्ट द यूजर. जो भी उसको यूज कर रहा है उस एप्लियंसेस को, ताकि वो शॉक से बच सके. राइट. टू द यूजर फ्रॉम एनी accidental electrical shock ड्यू टू द लीकेज ऑफ करंट. ऐसा होगा कि बाई चांस ऐसा हो कि कभी भी करंट लीक होगा तो वो, क्योंकि किससे कनेक्ट है? अर्थिंग से, तो ऑल दिस कंप्लीट अमाउंट ऑफ करंट विल मूव थ्रू दी अर्थ. सारा का सारा किस में जाएगा? अर्थ में, क्योंकि हमारे हर एप्लियंसेस पर क्या लगी होगी? अर्थ वायर. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Here, it's very good question here. Study the table and answer the following questions. The following apparatus is available in a laboratory which is summarized in the tabular form. Battery adjustable from 0 to 4.5. Resistor, it is 3 to 6. Then ammeter, it's given. Voltmeter, it's given. For what purpose an ammeter is used? Question is कि ammeter को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? It's very easy. We know it. It is used to measure the current. किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एमीटर. राइट. इफ़ यू रिक्वायर द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं? सो वी नो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. राइट. ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. अगर आपको मिनिमम करंट चाहिए हो, वैल्यू मिनिमम करनी हो, तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर for finding the equivalent resistance of the resistor in the series would be. अगर आपको बेस्ट वैल्यू चाहिए वोल्ट मीटर की और एमीटर की, सो हेयर वी हैव एमीटर, हम क्या ले लेते हैं? A2. और वोल्ट मीटर क्या चाहिए हमारे को? V1. ठीक है. ओके. नाउ हेयर for the experiment to find the equivalent resistance of the parallel combination, the best choice would be. क्या होगा? कैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे? द एमीटर एंड देन वोल्ट मीटर. एमीटर होना चाहिए A2 और वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए हमारा? V1. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स रिलेटेड टू जनरेटर बट स्टिल वी कैन मैनेज इट. राइट. इट इज नॉट इन द सिलेबस but still we will see what's the question here. A DC generator, also called a DC dynamo, convert mechanical energy को electrical energy में convert करता है. It work on the principle that when a coil rotate, the direction of induced current is produced. तो जब coil rotate करेगा तो current produce होता है. Direction जो होती है, it is given by Fleming right and rule. Right. Now here, the essential difference between an AC generator and DC generator is that. What is the difference between an AC and DC? So AC we have slip ring. ये आप देखते हैं यहाँ पर, ये जो रिंग्स लगी होती हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी क्या होती हैं? स्लिप रिंग्स. ठीक है. और जो डीसी जनरेटर होते हैं उसके अंदर क्या होता है? कॉम्यूटेटर. कॉम्यूटेटर. राइट. नाउ नेक्स्ट इज हियर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी? डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0. राइट. थर्ड, what type of dynamo is used in a bicycle? बाईसाइकिल में क्या होता है? डीसी डायनेमो यूज करते हैं. राइट. A DC motor is rotating in a clockwise direction. How can the direction of a rotation be reversed? अगर आपको इसको डायरेक्शन को रिवर्स करना होता है, it is used by changing the direction of current. राइट. डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर ये भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. राइट. नाउ नेक्स्ट इज हियर, रीड द following case based questions
एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जब केस बेस्ड आते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से उसको समझना है, तब उसको करना है। सो हियर we have electrical resistivity of some substances at 20 degree Celsius are given. हमें क्या given है? Resistivity given है, right? In this silver it's given 1.6, copper 1.62, tungsten it's 5.20, then iron it is given 10, next mercury given, नाइक्रोम गिवन, राइट। ये सारी की सारी हमारे को रजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू डू, अमंग सिल्वर एंड कॉपर विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर। सो हाउ यू कैन डिफाइन द कंडक्टर, कंडक्टिविटी को कैसे आप उसमें जज कर सकते हो। देखो रजिस्टिविटी दैट इज जस्ट अपोजिट टू द कंडक्टिविटी, राइट, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे कम रजिस्टिविटी किसकी है, 1.60 इसकी है। तो इसका मतलब दिस इज द बेस्ट कंडक्टर, राइट। इट हैव मोर कैपेबिलिटी टू अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू इट। नेक्स्ट, विच मटेरियल वर्ल्ड यू एडवाइज टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, किस कैसे मटेरियल को यूज करना चाहिए। सो वी यूज हियर फॉर हीटिंग डिवाइस वी यूज नाइक्रोम वायर, right, whose resistivity is more, so that more collision will be there, more collision and more heat will be there, right. What do you mean by resistivity? So what is the resistivity? Resistivity is defined as the resistance only. Resistivity क्या होती है, resistance ही होती है when it is of unit length, when the wire is of unit length and area that is equals to 1 unit, right, clear. Next question is what is the effect of temperature on resistivity? What is the effect of temperature? क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का resistivity के ऊपर? So here resistivity changes if its temperature changes. अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो resistivity भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, right. Next question we have resistivity, we know it depend on length, कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। When a conductor is stretched, अगर किसी भी कंडक्टर को स्ट्रेच करें then its area decreases, तो उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा, बट द वॉल्यूम रिमेन सेम, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। सो हियर वी हैव डेटा, वी नो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। कंबाइन करते हैं तो आपके पास आता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, वी गेट रो इनटू l/a, बिल्कुल। So now question is what do you mean by resistivity? Here the resistivity we say, अभी हमने बात करी थी, it is the resistance only, लेकिन resistance किसके लिए, जब कंडक्टर की लेंथ कितनी हो, 1 यूनिट और एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया लेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ and unit area of cross section, right. Now what is the SI unit of resistivity? Resistivity we are saying it is equals to R into A by L, right. So A, R की यूनिट याद करो, R की यूनिट क्या होती है, ओम। यहाँ पर एरिया की कितनी होगी, मीटर स्क्वायर, लेंथ की कितनी होती है, मीटर, कैंसिल आउट इट इज इक्वल्स टू ओम मीटर, राइट, क्लियर। Now write one difference between resistance and resistivity. Now is there any difference between this? So here yes, it is the resistance, it is the property, it is the property of a conductor, it's of conductor by virtue of which it oppose or resists the flow of current, जो करंट के फ्लो को रोके, राइट, जो करंट के फ्लो को रोके, ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, right. But resistivity is the property, it's a characteristic property of the material and varies when it temperature changes, temperature change करता है तो ये भी क्या करती है, change करती है, right. Now as the resistance of a wire of length is half and area is double, what will be the new resistance? We know R equal to हमारे पास होता है रो into L by A, राइट, ओके। अब नया जो रेजिस्टेंस आएगा उसमें कहता है लेंथ को हाफ कर दो और एरिया, जो नया एरिया है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डबल। सो हाउ टू फाइंड इट, आर डैश इट इक्वल्स टू रो इंटू एल डैश डिवाइड बाई ए डैश,
लेट पुट्स वैल्यू है रो इंटू एल डैश की वैल्यू क्या बनेगी एल बाय टू और एरिया की वैल्यू कितनी बनेगी 2a. तो here we get rho into L divided by 4 into A. This complete value if we join, we get here 1 by 4 into kit k equal R k equal, right? Okay. Now, next question here. Read the following case-based passage and answer the questions given after the passage. An electrician is a tradesman specializing in electrical wiring of a building, transmission lines, stationary machines, and related equipment. Electrician may be employed in the installation of a new electrical component or maintenance and repair. An electrician has made electrical circuit of a house in such a way that if a fan is closed, the lamp ऑल्सो स्टॉप डूइंग. देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस तरह से सर्किट को बनाया गया कि अगर पंखे को बंद करेंगे फैन को ऑफ कर देंगे तो जो लैंप होगा वो भी ग्लो करना बंद कर देगा. सो व्हाट इज द डिफेक्ट इन दिस टाइप ऑफ अ सर्किट वायरिंग. तो क्या किया होगा उसने. इट्स ऑब्वियस दैट इट मे बी हैपन दैट ही कनेक्ट all the lamp with the fan in a series. किस में ज्वाइन कर दिया गया होगा उसको सीरीज में. So if one device fail, the circuit get broken and all the devices in the circuit also stop working, right? Now question number second. Two resistance R1 and R2 are connected turn by turn in parallel and in series. एक बार resistance को क्या किया गया parallel में फिर series में. In which case the resultant resistance will be less. कब ऐसा होगा कि रिजल्टेंट जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से लेस होगा, राइट. यू कैन टेक एग्जांपल ऑल्सो. आप एग्जांपल की हेल्प से भी कर सकते हो कि इफ यू आर टेकिंग 2 ohm 3 ohm 4 ohm, राइट, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस इन सीरीज सो इट इज 2 + 3 + 4 इट्स हियर 7 + 2 दैट इज 9, है ना. अब यहाँ पर मेरे पास कितना आंसर आ गया 9. आप बताओ क्या ये इंडिविजुअल वैल्यू से लेस है. नो. So here if you find this value in parallel that will be always less. तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा लेस होता है किससे उसकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से मींस R1 R2 R3. Got it. Now question is which is the better way to connect light and other appliances in domestic circuit series connection और parallel connection. आपको किस तरह से कनेक्ट करना चाहिए appliances को. So parallel connection is the better way. Right, we always connect the circuit in a parallel because when we connect and if we want to use one device only so here we can use one and the other will be not in the operation means दूसरा जो होगा वो क्या होगा फिर काम नहीं करेगा. अदरवाइज आप एक को ऑफ करेंगे और सारे के सारे क्या होंगे ऑफ हो जाएंगे, राइट. नाउ नेक्स्ट इज next is in which type of combination different resistors will have equal value of electric current through them. So here in series combination different resistors will have equal value of electric current. Series में ऐसा होता है कि देखो if you are taking any circuit like this is with the resistance R1 दूसरा हमने कंसिडर किया R2 और तीसरा हमने कंसिडर किया R3. If one current I is flowing through it, so it will be same throughout. ये सारे के सारे में क्या रहेगा same रहेगा. Okay. Now next question we have here. This is read the following case-based passage and answer the questions given after the passage. So this is the resistivity given here. Resistivity of all the materials silver, copper, aluminium, tungsten, nickel, iron, chromium, mercury, manganese, alloys. Why tungsten is used in the bulb of a filament? Tungsten को क्यों use किया जाता है क्वेश्चन ये पूछा गया. So why it is used? Because we say that tungsten it has the high resistivity. इसकी resistivity क्या होती है high होती है, right? And high melting point. Melting point भी क्या होता है इसका high होता है, right? It has a high resistivity and high melting point. It emits light when it becomes very hot, right? And does not melt at high temperature. सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मेल्ट नहीं होती, right? Now question is which among copper and tungsten, copper, can you see here resistivity of this, and tungsten is also mentioned here, right? This is 5.20. Among these which one is better?
कौन सा इसमें बेटर होगा? सो फॉर कॉपर एंड टंगस्टन, कॉपर इज बेटर. Here we say copper is a better conductor because resistivity is low. ठीक है, कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है? कम है एज कंपेयर टू टंगस्टन. तो अगर रेजिस्टिविटी कम होती है, मैंने यही बताया था, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. नाउ फ्रॉम दी अबव टेबल द मोस्ट पॉपुलर मटेरियल यूज्ड इन द हीटर इज, हीटर के अंदर कौन सी वायर यूज करनी चाहिए? नाइक्रोम वायर. नाइक्रोम वायर, इट इज एन अलॉय, अलॉय होता है राइट, विच हैज़ अ हायर रेजिस्टिविटी. इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोलाइड करेंगे, साथ में टेम्परेचर हाई होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो राइट. नाउ क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ इज गिवन हेयर 2 मीटर. एरिया इट इज गिवन 1.7 इंटू 10⁻⁻, कितना? -6. Question is find the resistance. So resistance we know it equal to rho into L divided by E. Value of this is given. It's here 1.62 into 10⁻. Copper की resistivity given है, उसको use करेंगे. -8 multiply. Length is given 2 and area is given 1.7 into 10⁻⁻6. Okay, now you can solve and get the answer. Question is read the following. Read the following case-based passage and answer the following questions. Two tables given below. Study these tables related to measurement. We have this table. Potential is given. Current is given. Now table B is also given. Here we have a experimental data which is here. Voltmeter reading it is 2, 4, 6. And ammeter reading it is 1, 2, 3. Here we have a student Y that is 4, 6, 8 and here 4, 3, 4. Question is here, what is the mathematical relation between voltage and current? So here we know that as we increase the current, the voltage will also increase. So we say I that is directly proportional to V. Right? Okay. Now which student measurement is wrong? Can you see it here? जैसे जैसे हम यहाँ पर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, बट हियर यू कैन सी here potential increases but current not increases. Here in the both value it is same, so implies here Y is wrong. Y students का जो group है that is wrong. In the following measurement of student of Y, which measurement is wrong? तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर I equal to 4, Y V equal to 4. That's not possible, right? तो ये दोनों के दोनों values possible नहीं हो सकती. Now the value of resistance for the measurement of student A is वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड हियर V इज इक्वल टू वी नो इट इक्वल्स टू I इंटू R. R इक्वल्स टू वी नो इट इक्वल्स टू V बाय I. पोटेंशियल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं, इट इज 2/1 और आपके पास कितना आ गया? 2 ओम आ गया. सो आंसर इज इक्वल्स टू 2 ओम राइट. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. Read the following case-based passage and answer the questions given after the passage. Two tables given below. Study these tables related to equivalent resistance and answer the questions here. Parallel it is given, series it is given. Okay. Now which student measured the wrong equivalent resistance in table B? आपको यहाँ पर ये बताना है कि किसके अंदर यहाँ पर गलत आंसर निकाला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट 4 स्टूडेंट ए. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ए स्टूडेंट ने कितनी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट की, रेजिस्टेंस फाइंड आउट की. सो वी नो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. हमें पता है रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में कैसे निकालते हैं. सो हियर वी फाइंड हियर दिस इज 1 1 1. सो हियर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू फाइंड दिस 1 and 1. दे बोथ आर इन पैरेलल. सो वी हियर 1 + 1 ही आएगा, तो किसके इक्वल आएगा? 2 राइट. एंड सॉरी this is in series, so this is 2 and another one that is 1 + 1/2. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू 1 नहीं आएगी, तो this is wrong here. Got it? Clear? Now another one we say in which configuration of resistance the potential across this will remain same. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस में ऐसा होता है कि पोटेंशियल सेम होता है. सो वी नो इन सीरीज करंट इज सेम. करंट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है.
और पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है, V1 V2 लाइक दिस, राइट। लेकिन पैरेलल में जब हम कंसिडर करते हैं तो जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, I1 I2 I3 लाइक दिस, बट पोटेंशियल जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज, आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट फॉर ए सी, आर डैश निकाल लेते हैं यहाँ पर, इट इज इक्वल्स टू ए सी प्लस कितना, बी सी, ओके। सो इट इज इक्वल टू 1 plus 1, it is equal to 2, right? Now for AB we need to find out, it is equals to, here दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो ये आ जाएगा 1/2 plus 1, it is equals to, एल्सियम लेते हैं, 1 plus 2/2 इट इज इक्वल टू 3/2, बिल्कुल। और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आएगा 2/3 विच इज इक्वल टू 0.6, तो आंसर इज डी, right? In which configuration of resistance the potential difference, okay, now in which configuration of resistance the current across this is same, करंट जो होता है वो किसमें सेम रहता है, इट इज ऑलवेज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ दिस आई हैव टेकन द प्रीवियस टेबल, और अभी हमने जो टेबल पढ़ी थी उसी में पूछा गया है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो हियर वी से, क्या कहता है यहाँ पर कि कभी भी ऐसा होगा कि कोई भी सर्किट है उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी फ्लो कर पाएंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर जल्दी फ्लो कर पाएंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नाउ फ्लो फॉर द करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो मुश्किल हो जाएगा। Now the next is here, there are two resistors, conductors X and Y of a same material having length L and 2L, radii R and R by 2, what will be the ratio of their new resistance, right? So here we know R equals to rho into L by A होता है, A को consider कर लेते हैं pi R square, आर इक्वल टू रो एज इट इज, लेंथ जो है वो डबल है और एरिया, सॉरी रेडियस जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा रो इंटू 2L डिवाइड बाय पाई इंटू आर स्क्र बाय 2 का स्क्र कितना हो गया 4, इट कम्स 8 इंटू रो डिवाइड बाय एल इंटू पाई आर स्क्र, राइट। सो आर वाई इट इक्वल्स टू कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स ऑफ कितना आर एक्स, if you divide these two value rx by ry that comes equals to 1/8, okay। Now two wire of equal length, one of copper other of manganese have a same resistance, which wire will be thicker, कौन सी वैल्यू थिकर होगी यहाँ पर, मैग्नीन जो वायर होगी दैट विल बी थिकर, राइट। नाउ ड्रॉ VI diagram, so here we have this current and potential. For this if you want to make a diagram, so it's only a line which is passing through the origin, किसमें से पास करती है, वो origin में से, right। So this is all about, you need to revise it, thank you, bye bye।